Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, students. Now let's start our next topic, reproduction in human beings. Reproduction in human beings means at the age of puberty, human beings start developing their organs and they start their special type of features in their body, and they are capable of reproducing and they can produce their young ones. So, but at the not at every age, at the age of puberty there is a starting of development of body. Now all of these changes, they can be grouped under the general process of growth in which the body become larger. ठीक है, जैसे जैसे आप छोटे थे तो उसके बाद आपके बॉडी के ऊपर डेवलपमेंट हुआ, बॉडी का डेवलपमेंट होने के बाद एट द एज ऑफ प्यूबरिटी, नियर अबाउट एट द एज ऑफ 13 and 14, योर बॉडी स्टार्ट ग्रोइंग, एंड at this age the germ cells start growing. Now some of these changes are common to both and girls. कुछ आपने देखा होगा कि एडोलसेंस एज में, जब प्यूबरिटी एज में बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच की जो उनकी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर में बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, which are not appearing at the young stage. Now we began to notice that the thick hair growing in a new part of the body, such as armpits and genital area, between the thighs, there is a darkening color. Now in case of girls, there is a change in the breast size, which increases with the darkening of the skin of nipples at the tip of the breast. Now girls become at the menstruation cycles at this time, and boys begins to have the new thick hair growth on the face. Their voice become to crack, their penis becomes to become enlarged and erect, and either on in a dream or at the night. All these changes they can take place slowly over a period of month and a year. ये सारी changes जो है आप अभी जैसे मैंने आपको बताया कि गर्ल्स का और बॉयज़ के बीच में एट द एज ऑफ 12 और 13 ये changes आप देख सकते हो. तो ये changes जो हैं it is due to the special type of hormones which are released at the age of puberty. So यहाँ पे जो germ cells हैं वो participate करेंगे in a sexual reproduction. For example, male they produce the male sex gametes and female start producing the female sex gametes. Now let's start the male's reproductive system. Male reproductive systems at the page of 137, see the diagram. The male reproductive system, it consists of the portion which produce the germ cells or the portion that deliver the germ cells to site of the fertilization. इसमें दो प्रोसेस हैं, दो मेथड्स हैं. नंबर फर्स्ट वो पोर्शन है जो जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करेगा, मीन्स स्पर्म सेल्स को. नंबर सेकेंड और अदर पोर्शन विच डिलीवर द जर्म सेल्स, जो स्पर्म सेल्स को कैरी करके लेके जाएगा एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में कौन कौन से पार्ट्स हैं उससे हम लोग पहले ये डिस्कस करेंगे. मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, नंबर फर्स्ट टेस्टिस, वास डेफरेंस, यूथ्रा, penis, accessory glands which is also known as the semical vesicles, and prostate glands and sperms. These are the male reproductive systems part. Now female reproductive system, it consists of ovaries, fallopian tubes, or it is also known as the oviduct, uterus, or it is also known as the womb, vagina, or it is also known as the birth canal, and last one cervix. Now let's start with the male reproductive system. Male reproductive system, it consists of the formation of germ cells or sperms take place in the testes. Now see the diagram. Here is a testis. In this testis there is production of the germ cells or sperm cells. यहाँ पे इस portions के अंदर sperm cells का production होगा, and these testes they are lying in a pouch like structure which is called the scrotum. So testes they produce the sperms and male hormone. The main function of the testes is it produces the sperms as well as the male hormone which is known as the testosterone. Now testes, number second, testes present in a scrotum. ये जो pouch like structure दिखाई दे रहा है, it is known as the scrotum. The formation of germ cells or sperm cells take place in the testes. These are located outside the abdominal cavity in the scrotum because sperm cells formation require a lower temperature than the normal body temperature.
स्पर्म सेल्स जो हैं इनको स्पर्म्स का फॉर्मेशन बनाने के लिए इनको टेम्परेचर जो है वो लो चाहिए एज कम्पेयर टू हमारे बॉडी टेम्परेचर से, इसलिए वो स्क्रोटम के अंदर रहते हैं, ठीक है। इन द रोल ऑफ द टेस्टिस इन द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टिस का मेन फंक्शन अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, इट इज़ द सेक्रेशन, ये आपको सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। In addition to regulation the formation of sperms, testosterone brings about the change in the appearance seen in the boys at the time of puberty. टेस्टोस्टेरोन जो हैं मेल हार्मोन जो हैं इनका और मेन फंक्शन क्या है, एक नंबर फर्स्ट वो तो टेस्टोस्टेरोन जो है दिस वन स्पर्म्स का प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। नंबर सेकेंड, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जैसे बच्चों की एज जो है प्यूबर्टी पे आती है, एडोलेसेंस एज पे है, उसके बॉयज़ के अंदर जो है स्पेशल टाइप का कैरेक्टर्स जो है वो अपीयरिंग स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ टेस्टोस्टेरोन वो अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। बॉयज़ बिकम टू हैव अ न्यू थिक हेयर ग्रोइंग ऑन अ फेस, मॉस्टल एंड बियर्ड्स आ जाएंगी, वॉइस बिकम क्रैक। नाउ द स्पर्म्स फॉर्म this one the sperms form the delivery through the vas deferens which united with the tube like structure with the urinary bladder. अब स्पर्म्स जो है यहाँ से जो प्रोडक्शन स्पर्म्स का बना है, ये यहाँ से वास डेफरेंस जो है एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो यहाँ से यूथ्रा के साथ अटैच है। यूथ्रा क्या है, यूथ्रा इज अ दिस वन एक डक्ट है विच हेल्प टू पास द यूरिन एज वेल एज द स्पर्म्स। हियर इज द ब्लैडर, ये यूथ्रा जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे यूथ्रा जो है ये थ्रू द पेनिस जो है ये स्पर्म्स को एज वेल एज द दिस वन यूरिन को पास करने में हेल्प करेगा। ना वास डेफरेंस क्या है, वास डेफरेंस इट इज़ आल्सो अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और इट इज़ आल्सो नोन एज द स्पर्म डक्ट, जो यहाँ से इसको कैरी करके स्पर्म्स को आगे ऊपर लेके जाने में हेल्प करवाएगा। नाउ देयर इज आल्सो प्रेजेंट द सेमीफेरेंस ट्यूब्यूल्स विच आल्सो प्रोड्यूस अ स्पर्म cells. Now next part is called the penis. Penis, it is a muscular without any bone. It is also known as the urinary genital tract through which the urine can pass. Urethra, it is also present inside it. Now the function of the sperm cell formed at the delivery through the vas deferens which unite with the tube like structure coming from the urinary bladder से नीचे आएगा। The urethra thus form a common passage for both the sperms and urine. यूथ्रा से जो है स्पर्म्स और यूरिन दोनों एक साथ यहाँ से पास होके बाहर आएंगे बॉडी से। Along the path of the vas deferens, gland like prostate and seminal vesicles, they add their secretion so that the sperms are now in a fluid which make their transport easy and thus it makes the provide nutrition. अब ना सेमिकल वेसिकल्स का मेन फंक्शन क्या है, सेमिकल वेसिकल्स का मेन फंक्शन क्या है, दे प्रोड्यूस द फ्लूइड विच हेल्प इन द स्पर्म मूवमेंट। स्पर्म्स जो हैं जो अंदर का प्रोडक्शन में यहाँ पे टेस्टिस में बनेंगे, उस टाइम पे स्पर्म्स जो हैं वो इमेच्योर रहेंगे। इमेच्योर मतलब ऐसे नहीं कि वो बड़े नहीं हुए, इमेच्योर का मीन्स उनको लिक्विड फ्लूइड नहीं मिला है कि वो मूवमेंट कर सके, ठीक है। तो सेमिकल वेसिकल्स जो हैं ये स्पर्म्स की मूवमेंट में हेल्प करवाएंगे, लिक्विड फ्लूइड सिक्रीट करेंगे जिससे जो है वो स्पर्म्स जो है वो फ्लूइड करके आगे ट्रांसपोर्ट होके इजीली जाएं। एंड दिस फ्लूइड आल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, और ये जो हैं वो जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन देंगे। द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेन जेनेटिकल मटेरियल एंड लॉन्ग टेल दैट हेल्प इन टू मूव द टूवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल। अब स्पर्म्स जो हैं ये क्या है, दीज आर द छोटी टाइनी बॉडीज एंड इट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वगैरह सब जेनेटिक मटेरियल है, और लॉन्ग टेल है। लॉन्ग टेल स्पर्म्स का स्ट्रक्चर जो है इट इज जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है। यहाँ पे उसका डीएनए मटेरियल जो है वो स्टोर रहेगा, इट इज कॉल्ड द मिडल पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड द टेल पार्ट। और यहाँ से ये मूवमेंट करके जो है वो फीमेल्स के जो फीमेल जर्म सेल जो हैं उसके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए वो हेल्प करवाएगा, ठीक है। ये टेल जो है उसको स्पर्म्स को मूवमेंट में हेल्प करवाएगी। Now come to the female reproduction system. So female reproduction system, it consists of ovaries, fallopian tubes. There are 2 pair of ovaries and 2 pair of fallopian tubes on both the sides. Uterus, this is the uterus, ठीक है। और वॉर्म, यहाँ पे बच्चा जो है जो बेबी जो है वो 9 मंथ तक वो अपना नरिशमेंट लेगा और बॉडी का डेवलपमेंट करेगा। नेक्स्ट इज द वजाइना, here is the vagina. It is also known as the birth
कैनाल, जहाँ से बच्चा जो है डिलीवर करके, और आफ्टर दिस वन डिलीवरी जो है यहाँ से वो बच्चा जो है डिलीवर होगा. एंड above the vagina there is a structure which is known as the cervix. Now come to the next page. When the girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. जब भी बेबी गर्ल बॉर्न होती है उसकी ओवरीज के अंदर थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग्स होंगे एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. लेकिन एट द एज ऑफ मेच्योरिटी जब उनकी बॉडी जो है जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प स्टार्ट हो जाएंगी और उनकी बॉडी के अंदर जो है हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन्स जो हैं, दीज आर द फीमेल हार्मोन्स, वो स्टार्ट डेवलपिंग करेंगे एट द स्टेट ऑफ मेच्योरिटी. ईच उनमें से थाउजेंड ऑफ एग में से सिर्फ वन एग जो है वो एवरी मंथ जो है वो ओवरी प्रोड्यूस करेगा. द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वर्म थ्रू द थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब. अब यहाँ से ईच एग जो है, यहाँ से सीधा डायग्राम, सो यहाँ से थाउजेंड ऑफ एग्स जो है प्रोड्यूस होंगे, लेकिन यहाँ से एक एग जो है इन ईच एंड एवरी मंथ यहाँ से फैलोपियन ट्यूब पे यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब जो है इट मीन्स फंक्शन जो है उसका यही होगा कि वो एग्स को कैरी करके यहाँ पे मिडिल पोर्शन में लेकर आएंगी यहाँ पे, ठीक है. और ओवरी से एग रिलीज होगा, इट कम्स टू द फैलोपियन ट्यूब. 2 pairs ऑफ फैलोपियन ट्यूब आर देयर एंड 2 pairs of ovaries are there. So ovary जो है it is oval in shape and fallopian tube जो है it is funnel in shape. Ovaries, the main function of ovary is to produce this one ovum and hormones, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. मेल्स के केस में कौन सा हार्मोन्स था, यहाँ पे हमारे पास स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए टेस्टोस्टेरोन था. लेकिन फीमेल्स के केस में 2 हार्मोन्स काम करेंगे, वर्किंग करेंगे. नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन, नंबर सेकंड इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन. ओवरीज आर 2 pairs and they are oval shape and there is a lack of immature eggs. Now fallopian tube, it is of funnel shape. ये दोनों साइड की funnel shape हैं. It help in the development process that start after the fertilization. यहाँ पे जब fertilization होगा उसके बाद का जो development है यहाँ से start होगा, और यहाँ से immature egg जो है after fertilization it comes to the uterus part, और यहाँ पे आके वो placenta के अंदर वहाँ पे embedded हो जाएगा. Now uterus, this is the delicate thick lining. ये जो आपको रेड पोर्शन में दिखाई दी, दिस इज द डेलिकेट थिक लाइनिंग. यहाँ पे आके एग जो है वो इम्प्लांट हो जाएगा. Now uterus form, it is the now in this portion in the uterus the baby start developing here for the next gestation period. यहाँ पे आके जितना भी 9 month तक बेबी का डेवलपमेंट है वो यहाँ पे गेस्टेशन पीरियड के लिए यहाँ पे रेडी रहेगा. Now next vagina, it help to pass the urine as well as to deliver the baby from here. यहाँ पे ये दोनों वजाइना जो है ये दोनों फंक्शन करेंगे. यहाँ से फीमेल्स जो हैं दे कैन पास देयर यूरिन एज वेल एज वजाइना हेल्प टू डिलीवर द बेबी. नाउ सर्वेक्स, इट इज़ द पोर्शन विच इज़ अबव द वजाइना. सो ये सारा पोर्शन जो है बेटे जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया ये यहीं पे है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. On reaching the puberty, some of these start maturing. One egg is produced every month by the one of the ovary. The egg is carried from the ovary to the womb through the thin oviduct or fallopian tube. Two oviduct unite मतलब ये fallopian tube जो है ये इनको हम लोग सेकेंड नेम इसका oviduct भी बोलते हैं. ये दोनों oviduct जो है ये यूनाइट है. हर मंथ में in each and every month each one fallopian tube there releases the egg and it plants towards the uterus. Now the uterus open from into the vagina through the cervix. The sperm enter the vaginal passage during the intercourse or during the fertilization. Now during this intercourse the sperms enter through the vaginal passage during the sexual intercourse. They travel upward and reach the oviduct. There may be encounter of the egg. यहाँ से फ्रॉम द वजाइनल पोर्शन यहाँ से स्पर्म्स जो है एंटर करेंगे. एंटर करने के बाद यहाँ से रिलीज होके देन इट कम्स ओवरी. ओवरी से जो है अगर वो एग जो है प्लांट करके यहाँ पे गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये सारा का सारा एग जो है यहाँ पे यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाएगा. नाउ द फर्टिलाइजेशन एग
ये जो एग जो फर्टिलाइज हो गया आफ्टर द मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इट इज नोन एज द जाइगोट. इट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म द बॉल ऑफ सेल विच इज कॉल्ड एम्ब्रियो. मेल और फीमेल सेक्स सेल्स जो थे वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का दोनों का फ्यूजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे फॉर्म द जाइगोट. और जाइगोट जो है वो उनके सेल्स धीरे धीरे और ज़्यादा बहुत सारे डिवाइड होंगे एंड दे फॉर्म द एम्ब्रियो. दिस एम्ब्रियो it is plant in the uterus for the 9 months. So the embryo is plant in the lining of uterus where they continue to grow and develop an organ to become the fetus. और धीरे 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 उसके डेवलपमेंट होती जाएगी और लास्ट में वो एक फुली मेच्योर बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज नोन एज द फिटस. उसके बाद द एम्ब्रियो गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू कॉल्ड द प्लासेंटा. एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन मिल रहा है मदर की बॉडी में से, वो कहाँ से मिल रहा है? एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है जिसको हम लोग प्लासेंटा बोलते हैं. दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्रन वॉल. ये यूट्रन वॉल के साथ ये डिस्क अटैच है. इसी प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो बेबी जो है वो ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज जो है वो मदर की वॉर्म से ले रहा है. दिस प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो. The developing embryo will also generate waste substance which can removed by transfer them into the mother blood through the placenta. उसके बाद जो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो भी अपना वेस्ट मटेरियल जो है वो भी रिमूव करेगा फ्रॉम द इनटू द मदर ब्लड थ्रू दिस प्लेसेंटा. प्लेसेंटा आप लोगों ने देखा होगा कि जब न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसके जो जिसको आप क्या बोलते हैं उसको नाभि जिसको बोलते हैं उसके आगे देखा होगा आपने प्लासेंटा होता है. ड्यूरिंग द आफ्टर द बर्थ वो डॉक्टर जो है वो प्लेसेंटा को कट कर देते हैं. तो वहीं से बच्चा जो है बेबी जो है वो पूरा नरिशमेंट जो है वो लेता है. द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर बॉडी टेक प्लेस अप्रोक्सीमेटली 9 months. द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द यूट्रस. और उसके बाद डेवलपमेंट जो है 9 month तक बच्चे का बेबी का वहीं पे रहता है. फीटस जो है वो आफ्टर 9 months दे कैन डिलीवर. He or she they can come out from the mother womb. The child is born as a result of rhythmic contraction of muscle. और उसके बाद यूट्रस की जो मसल्स हैं वो उसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और बेबी जो है वो एज ए रिजल्ट वो बॉर्न करेगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर वो एग फर्टिलाइजर नहीं हुआ, क्योंकि हर मंथ में ईच एंड एवरी मंथ यहाँ पे एग रिलीज होगा. एग अगर रिलीज हो रहा है, अगर यहाँ से स्पर्म सेल्स आ रहे हैं, मेल गैमेट आ रहे हैं, तो वो अगर उसके साथ मीट करेगा तो वो जो है आगे नेक्स्ट जाइगोट में या एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगा जो जाके यहाँ पे यूट्रस में एम्बेडेड हो जाएगा. पर अगर सपोज करो कि यहाँ पे स्पर्म सेल्स जो है वो उसको मेल गैमेट जो है वो उसको फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं मिल रहा है, तो उस केस में क्या है? व्हाट हैपन इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज? इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लिव फॉर 1 day. सिंस द ओवरी रिलीजेज one egg every month, yet the uterus also prepare itself every month to receive the fertilized egg. क्योंकि हर मंथ में एक एग जो है एवरी मंथ में रिलीज होगा और यूट्रस जो है अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है कि वो फर्टिलाइज एग को रिसीव करे. तो द लाइनिंग बिकम द थिक एंड स्पंजी. और उसके बाद ये जो लाइनिंग है दिस लाइनिंग ऑफ यूट्रस इट बिकम थिक एंड स्पंजी एंड इट स्टार्ट रैप्चर. उसके बाद वो जो है वो एकदम वो ब्रेक हो जाएगी वो लाइनिंग. दिस वुड रिक्वायर्ड फॉर द नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन है टेक प्लेस. अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो जो लाइनिंग है वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट देगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो लाइनिंग धीरे 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 स्लोली ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड इट कम आउट फ्रॉम द वजाइना एज अ ब्लड एंड म्यूकस. और वो जो लाइनिंग जो है वो ब्रेक होने के बाद इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस इट कम आउट फ्रॉम द वजाइना. दिस साइकिल टेक प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इट इज नोन एज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. ये साइकिल जो है एवरी मंथ में होगा कि अगर स्पर्म सेल्स जो हैं वो एग ओवम को या एग को मीट नहीं कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो यूट्रस की जो लाइनिंग है इट स्लोली ब्रेक एंड एज इट रिजल्ट एज इन द वजाइनल ब्लड एज वेल एज अ म्यूकस. और ये इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दिस इज नोन एज अ मेंस्ट्रुएशन. इट यूजली लास्ट अबाउट 2 to 8 days. ठीक है. और इसका टाइम पीरियड जो है इट वेरीज फ्रॉम one person to another females for 2 to 8 days. Now next topic